conducted by Sports Authority of India, Lakshmi Bai National College of Physical Education. At the outset, let me welcome all. Today we are having with us our director and principal of Sai LNCP region, Dr. G. Kishore sir with us. On behalf of all the participants and on behalf of all the panelists, I welcome Dr. G. Kishore to this program. Welcome you, sir. Thank you. Thank you. Today we will be discussing regarding Khelo India Fitness Report Card and the Talent Identification Roadmap. In order to enlighten and educate us regarding this matter, we are having 4 eminent resource persons led by Mr. Sujit Panigrahi, who is the CEO of Fitness 365 and who is also the co-coordinator for this program. On behalf of all the participants and all the panelists and on behalf of Sports Authority of India, Lakshmi Bai National College of Physical Education, Ministry of Youth Affairs and Sports, and Khelo India, I extend my sincere and heartfelt welcome to you, sir. Welcome you, sir. We are also having Sri Ratish, who is the PRT in charge of sports cell, also KVS regional office Bangalore, also with us. I also welcome you, sir. We are also having S. Surya Prakash, who is in charge of sports cell KVS regional office Hyderabad. I also welcome you, sir. And we are also having another eminent panelist, who is Mrs. Neeraj Singh, who is the HOD of Physical Education, JP Public School, Greater Noida. Now, to have an introduction of these people in brief, I would like to say that Mr. Sujit Panigrahi, who is the CEO of Fitness 365, which is a company which is running structured physical education and sports coaching programs in more than 1,500 schools across India, who is also managing Khelo India Fitness Assessment Program for Sports Authority of India, also Swasth Bacche Swasth Bharat program for Kendriya Vidyalaya Sangathan, and he is also a part of Fit India program. So he is also a part of CBSE and NCERT's Physical Education Curriculum Development Committee. On behalf of everyone, I once again welcome you, sir. Thank you so much. We are having Mrs. Neeraj Singh, who is the CBSE Sports Observer since 2006, and who is also heading and spearheading all the programs of physical education programs of JP Public School, Greater Noida. She is also proved her caliber as a table tennis as well as a taekwondo player at national level. Madam is also a master trainer of Khelo India Fitness Assessment. I once again welcome you, madam. Thank you, sir. Thank you so much. We are having Mr. P.R. Ratish, who is from Kendriya Vidyalaya Rail Wheel Factory, Bangalore, who is in charge of Sports Cell KVS Regional Office, Bangalore. He is also a KVS National Incentive Awardee in the year 2015. We are very happy to have you, sir. I also welcome you to this program. Thank you, sir. Thank you very much. We are having Mr. S. Surya Prakash, who is from Kendriya Vidyalaya number 2, Golconda, Hyderabad. He is also a member of Regional Sports Control Board. He is also in charge of Sports Cell Kendriya Vidyalaya Sangathan Regional Office, Hyderabad. And he is also a KVS National Incentive Awardee in the year 2015. On behalf of everyone present over here, I welcome you, sir. So, on behalf of everyone and with the permission of Dr. G. Kishore, Principal, sir, I request Mr. Sujit Panigrahi, sir, to kindly take charge. Sir, over to you, sir. Yeah, so good morning, everyone. Good morning, Dr. Kishore. Good morning, Sudhir, sir. On behalf of, so all of us would like to thank Sports Authority of India, Khelo India, and LNCP Trivandrum, Sai LNCP Trivandrum, for this opportunity. And this is a very important topic. Yesterday, we had the first part of this entire program, which is on the Khelo India Fitness Assessment. And like yesterday I had told, so basically any subject that we take in so whether it is science, English, mathematics, or any subject or physical education, it has 2 major components. One is about the curriculum itself, which is basically the activities that we do, whether it is on the playground or in the classroom, all the activities that we do, the learning that we do, and the second part is outcome. So if you have a good physical education program, then the outcome of that has to be visible. So the outcome of that has to be in terms of improvement in physical fitness. So the Khelo India Physical Fitness Assessment Program has this 2-pronged approach that we talked about. One is a fitness assessment report card for every child, so that in term 1 and term 2, when the class teacher gives out a report card, the class teacher gives 2 report cards. One is an academic report card, and along with that, a physical fitness report card, to show that the school basically has a balanced education program.
It focuses on academics, it focuses on sports. So that's the first thing, so that ek bhi bacha chhoot na jaye. The second part is that if you actually do it across India, 1.5 million schools, that's about 15 lakh schools, 30 crore children. If we can actually have all the children as part of the platform, what would happen is that the size of the pyramid at the top, if you have greater participation, we'll have greater podium finish. So from Sports Authority of India, Sports Authority is interested in identifying talent from nook and corner of India, whether it is the remotest village or from urban India. We do not know where we will get the next Hima Das or Mary Kom, so we do not know where it is. So we need to use technology to do assessment so that we can find identified from wherever they are. So yesterday we looked at 2 or 3 aspects. We looked at how does a school create registration for themselves. The principal can create school registration. The principal can upload the student data. And once that is ready, and if there are 5 or 7 physical education teacher or sports coach or PRTs, primary teachers, whosoever is involved in the physical education program, they would download the Khelo India mobile application for doing assessment in the school. Once they download and fill up their profile, the principal is going to say that these are the 5 teachers who are part of my school. So one is through Managed Assessor. Once that is done, automatically the student data gets downloaded on the mobile phone of the teacher. So we came up to that. And the other thing that we talked about is the Khelo India has a battery of 8 tests which are there, 3 for primary and 6 for the senior, for 4 to 12. And 3 of them we discussed yesterday, which was basically on BMI, balance and coordination. These are the 3 tests which are for class 1, 2, and 3. We looked at how to do the test. So today we are going to look at 4 to 12, and then we are going to look at how does a report card look like and how can parents actually see this thing. So this is the second part. I would request Mr. Surya Prakash to explain about 4 to 12 today. And then we'll have, I will take over the report and Neeraj will also help me. Thank you, Sujit sir, and good morning to all. And quick recap, all of you have known about how to the principal's role and PET's roles and parents' roles. And yesterday you have learned about school registration, activation of school login, activating PET, uploading student data, promotion of students, and all these things yesterday were clearly explained to you. And basically we are having 2 tests for 2 categories. One is for class 4 to 12 and next is class 5. The first is for class 4 age group, 2 different age groups. One is for 5 to 8 and next one is 9 to 18. In 9 to 18, we will be having 4 to 12 classes here. In this one, already yesterday they had covered the body composition in the first test. The body composition is nothing but we will take 2 weights, 2 measurements we will take. One is weight in kgs, height in centimeters square. Then we'll go to next second test in this age group, that is sit and reach test. And basically it measures the flexibility of lower back and hamstring muscles. Just we'll watch the video. To conduct the sit and reach test, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. From various Here the first main thing is to conduct any test, first we have to open Khelo India Fitness Tester app. And immediately when you open, there is a Take Test option will come. Then the screen for various test options will be there. From this one, we have to go for sit and reach test. It comes under flexibility. Click on flexibility. test options, select flexibility and then tap on the sit and reach option. The app is now ready for the sit and reach test. Here, once you click on sit and reach test, then this page will open. It will be looking like this on the screen of your mobile. Here we have to take 2 readings.
And if you see here, initial position and final position. Now we will see what equipment is required to conduct the sit and reach test. The sit and reach test is a common measure of flexibility. It specifically measures the flexibility of the lower back and hamstring muscles. A sit and reach box is required to perform this test. The sit and reach box should be 12 by 12 inches on sides, 12 by 10 inches on front and back, and 12 by 21 inches on top. And this small box, it is easy to prepare it. Every school should have this particular box. And this dimensions is 12 inches into 12 inches sides and 12 into 10 inches front and back and 12 into 21 inches on the top. On the top of this box, there should be a meters and centimeters scale on the top should be pasted there. The top panel should be inscribed with centimeter and millimeter gradations. The test should be performed on clean cushioned surface or gym mat. Shoes should be removed before performing this test. This test involves sitting on the floor with legs stretched out straight ahead. If you observe this video, you will be seeing that one clean cushioned surface or a mat should be used and shoes of the participant should be removed and participants should be sitting on floor, long sitting position, soles of feet kept flat against sit and reach box and no bending of knees should be there. The soles of the feet are placed flat against the sit and reach box. Both knees should be locked and placed flat to the floor. With the palms facing downwards and the hands on top of each other, the subject reaches forward along the measuring line as far as possible. Firstly, the initial reach in the normal position is recorded. To do that, the score is calculated to nearest. Here, hand should be on fish shape and back should be straight, kept on box for initial reading. And it should be a normal position. There should not be any bending or anything. And the hand stretched in sitting long position should be kept on the box. It is initial reading. That initial reading should be feeded in the centimeters column. Centimeter and put it in the designated place in the screen. After some practice teaches, the subject reaches forward as far as possible and holds that position for at least 2 seconds while the distance is recorded. For final reading, subject bends forward as much as possible, moving hands on box, holds for 2 seconds and reading is taken. To record the final position, the score is calculated to nearest centimeter and put it in the designated place. Once final reading is taken and when you type it on the designated place, the net score 31 centimeters is already clearly visible for you. The difference between the initial position and the final position of the distance reached by the hand is displayed as net score in the screen. The ID card of the participant is scanned next and then the data is saved by tapping on the save option. This completes the sit and reach. The most important part is immediately you have to scan the identity card. Once the identity card is scanned, the name of the child will be appear and check the details of the child and save the test. And thus the completes the sit and reach test. Test. The next test is 50 meters dash. And for this conducting of 50 meter dash, we require a surface, at least 60 meters surface should be there, or it can be conducted on any track. And now why we are testing this particular dash is time taken to complete 50 meters. It measures speed and acceleration of the individual. Just now watch the video here. To conduct the 50-meter dash test, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. From various test options, select this. The same way, first go to the mobile and Khelo India Fitness Test app should be open and immediately takes test option. Here the speed, it comes 50 meter dash comes under speed. You click on speed.
speed and then tap on the 50-meter dash option. Depending on the number of participants, choose same number of lanes on the screen. Here it is very important to know that one after clicking this screen will be available on the mobile. Here we can, because number of participants, based on number of participants, we can select the number of lanes here. Lanes means number of participants. App is now ready for the 50-meter dash test. The aim of 50-meter dash is to determine the acceleration and the speed of the participant. The test involves running a single sprint over 50 meters. Start from a stationary standing position with one foot in front of the other. The front foot must be behind the starting line. It is very important to know that one here the starting position will be standing start, and in standing start with one foot in front of the other behind starting line. And tester should advise to run at maximum speed, run hard to continue running and through finish line. Participants are encouraged to not slow down before crossing the finish line. Once the participants are ready and motionless, the instructor gives the cue to start. There is no need to manually start the timer. The app is designed in such a way that the timer starts automatically at the sound of the Fox 40 whistle. And the most important feature of this particular app is no need of starting the time by manually. The app is enabled to start with Fox 40 whistle. And once the whistle is blown, automatically the watch starts. Participants should be encouraged to practice running with emphasis placed on the concept of pace. Time taken to complete the 50-meter dash for each of the participants is recorded. And we should encourage the participant. Already we should give instruction. They should complete the maximum phase, and same phase should be maintained till the end. And normally the participants would, by seeing the finishing line, they will be stopping, but they should run through with the same speed. And now what we are going to record is time taken to complete the 50-meter dash is recorded. An important thing is here, when each participant finishes line, you should tap on split timer till all participants finishes. And because when we are having 5, we have to tap on 5 times on split timer. To record the timing for each of the participants, tap split timer every time a participant crosses the finish line. The screen shows the timing of participants in the order they finished the race. It is important that one for each time the participants crosses the finish line, and if you tap on a split timer, the screen appears like this. Once it is over, all the participants should be stand on a line first, second, third, fourth, fifth, like this in order they should stand, and they should scan each identity card of all the 5 participants, and then we have to go for save. Record individual timings, tap the scan option and then scan the ID card of the participant. Hello. So, Hello. yeah, I think Surya sir is not audible, sir. I think so. There is some technical issue. Yeah, I think so. Some net issue. I'll take it over from here. Yeah, yeah. Hello. So, Ratish sir? Yeah. On it, ma'am.
Ratish, I'm playing. You explain. So we. Is it come? Ratish, I'm playing. You can talk. Ratish. Okay, sir. So we have you finished 800 meter? No, not yet. No, we are in finished 50 meters. Okay. Open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. Yeah, as you know that for every test we have to open the Khelo India app, and Khelo India app you have to click on the Take Test option. Once the Take Test option comes, you have 7 parameters. In that, this time it is 600 meters. We will be clicking on endurance. From various test options, select cardiovascular endurance and then tap on the 600. Yeah, once you click on the cardiovascular endurance, because 600 meters is to test the cardiovascular endurance of the subject or the students. And that after that, we'll be clicking on 600 meters run/walk. 100-meter run option. Depending on the number of participants, choose same number of lanes on the screen. Yeah, you can see in our app, we have developed in such a way that you can take as the number of students are there. You like, for example, if you have 8 lanes and you have 8 students or you have 6 students, you can click on the number of lanes, like for example, 6. Ratish, आप English and Hindi दोनों use कर सकते हैं. Okay, sir. Okay. The app is now ready for the 600-meter run test. The aim of 600-meter run is to measure the cardiovascular. आप देख सकते हैं हमारा जो एम जो है कार्डियो 600 मीटर्स का बच्चों का कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट करने के लिए होता है. सो यू विल बी टेस्टिंग द कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस ऑफ द चाइल्ड. Fitness and endurance. The test involves running a single sprint over 600 meters. Yeah, you can see the start for this 600 meters will be a curve start. For this, you require minimum of 200 meters or a 400 meters track. You'll be starting with the curve start with a standing start. Participants should start from a stationary standing position with one foot in front of the other. And make sure that the students are standing behind the line. They do not touch the line or do not cross the line. The front foot must be behind the starting line. Participants are instructed to run 600 meters in the fastest possible pace. Once the participants are ready and motionless, the instructor gives the cue to start. आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम बच्चों को एनकरेज कीजिएगा कि जो 600 मीटर है, 600 मीटर आप कंटिन्यूअसली रन करें, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चा रुके और दौड़े. एक्चुअली में इसमें परमिटेड है कि अगर बच्चा थक जाए तो रुक के चल सकता है, लेकिन आप बच्चों को एनकरेज कीजिए कि धीरे धीरे वो बच्चा कंटिन्यूअस दौड़े, ताकि जितना टाइम कम ले उसका एंड्योरेंस बच्चे का उतना अच्छा होता है. Instructor gives the cue to start. There is no need to manually start the timer. The app is designed in such a way that the timer starts automatically at the sound of the Fox 40 whistle. जैसे हमने आपको बताया, जो हमारा जो ऐप है, it is developed in such a way that it is enabled with Fox 40 whistle का sound. आपको ये जैसे ही Fox 40 whistle से आप अपना रेस शुरू करते हैं, you need not tap onto the start button. It automatically starts. Participants should be encouraged to practice running with emphasis placed on the concept of pace. आप ध्यान दीजिएगा, जब भी बच्चे को एनकरेज करो तो उनको बोलिएगा कि एक पेस में कंटिन्यूअसली रन करे और 600 मीटर जितनी जल्दी हो सके, जितनी कम टाइमिंग में हो सके, वो क्रॉस करे.
Results are usually better if the participant can maintain constant pace during most of the run and use a strong closing effort. Time taken to complete the 600 meter. इसका जो हम लोग है जैसे मैंने पहले बताया आपको 600 मीटर कंप्लीट करने का जो टाइमिंग है वो हम नोट करेंगे. Run for each of the participants is recorded. To record the timing for each of the participants, tap split timer every time a participant crosses the finish line. The screen shows the timing of participants in the order they finished the race. जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जो स्प्लिट टाइमर करके जो ऑप्शन है, जैसे ही पहला बच्चा क्रॉस करेगा आप उसको एक बार दबाइए, जैसे ही दूसरा क्रॉस करेगा दूसरी एक और बार दबाइए. इसी प्रकार जितने आपके पार्टिसिपेंट्स हैं एक के बाद एक क्रॉस करते हैं, जैसे ही फिनिश लाइन वो क्रॉस करते हैं आप वो स्प्लिट टाइमर बटन दबाते रहिएगा. उसी प्रकार आपके 6 के 6 बच्चे जब क्रॉस करते हैं आपके सारे बच्चों का रीडिंग्स उसमें ऑटोमेटिकली नोट हो जाता है. To record individual timing, tap the scan option and then scan the ID card of the participant. आप एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप जब आईडी कार्ड स्कैन करते हो आप ध्यान दीजिएगा कि जो पहला बच्चा जो क्रॉस किया है आप उसका आईडी कार्ड क्लिक कीजिएगा. एंड द सेकंड child who crosses the finish line second, you have to scan that child's ID card. See that it does not get confused with the other child. The participant. Make sure the ID card is scanned in the same order in which they finished the race. Once you have scanned the ID card of all the participants, once you scan all the ID cards, आप जैसे ही सारे बच्चों का ID कार्ड स्कैन कर लेते हो, आप सेव बटन दबा के उस बच्चों का सारा एंट्री सेव कीजिएगा. Save the data to complete the 600 meter run test. इसी प्रकार हम 600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट कम्स पुशअप फॉर बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स. आगे आगे देखें वीडियो देखिए. To conduct the push-up test, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. जैसे हमने आपको पहले बताया, फॉर एनी टेस्ट, कोई भी टेस्ट लेना है, यू हैव टू ओपन द खेलो इंडिया ऐप एंड देन क्लिक ऑन टेक टेस्ट. From various test options, select strength and then tap on the push-up option. You can see, आप देख सकते हो कि जब खेलो टैप जब टेक टेस्ट करोगे उसमें आप स्ट्रेंथ क्लिक करोगे, उसमें आप देखिएगा कि दो चीज है, एक है पार्शियल कर्ल फॉर 30 सेकेंड और पुशअप. अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है पुशअप, सो वी विल क्लिक ऑन पुशअप बटन. The app is now ready for the push-up test. The push-up fitness test measures upper body strength, endurance. In this, हम लोग बच्चों का अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस ऑफ ट्रंक स्टेबिलिटी मेजर करेंगे. And trunk stability. A flat, clean cushion surface or a gym mat is required to perform this test. जो इस टेस्ट के लिए जो हमें इक्विपमेंट चाहिए, या तो हम एक जिम मैट यूज कर सकते हैं या तो यू कैन यूज अ योगा मैट. Standard push-up begins with the hands and toes touching the floor. The position for this test is your toes and your palm will be touching the ground. The body and legs should be in a straight line. And make sure your leg, your body, your hip is in the straight line. And your hands Feet slightly apart. Sorry. Go ahead. And your hands to be flexed straight, elbows straight, and shoulders locked. Arms at shoulder width apart, extended and at a right angle to the body. Keeping the back and knees straight, the subject lowers the body to a predetermined point to touch some other object or until there is a 90-degree angle at the elbows. Then returns back to the starting position with the arms extended. When you place your hand, you see that your hands are placed exactly on the shoulder width by the size of the shoulder width. And when the assessor gives a whistle, see that your elbows are flexed
to a 90-degree angle so that the chest level comes to a ground, towards the ground, and then hands to be flexed straight so that you get back to the same position. Position with the arms extended. When the participant is ready, the start timer option is tapped on the screen. जैसे ही पार्टिसिपेंट रेडी है तो एक्सरसाइज स्टार्ट टाइमर स्टार्ट करेगा और उससे द चाइल्ड विल स्टार्ट डूइंग हिज पुशअप्स एंड मेक श्योर दैट Participant मेक श्योर आप ध्यान दीजिएगा ये जो पुशअप एक्सरसाइज है इट इज नॉट टाइम बेस्ड. इसमें बच्चा तब तक करेगा जब तक बच्चा थक नहीं जाता हो या मैक्सिमम जितना उसके क्षमता है उतना तक वो कर सकता है. starts the push-ups. The action is repeated and the test continues until exhaustion or until they can do no more in rhythm. जैसे हमने बताया बच्चा तब तक पुशअप करेगा जब तक उस बच्चे की क्षमता पूरी नहीं हो जाती. और ध्यान दीजिएगा जब जैसे ही बच्चा the child is able to do no more, the timer will be stopped and the number of correct push-ups will be recorded. Number of correctly completed push-up is recorded. For girls, the push-up technique is slightly modified with both the knees resting on the ground. And for the girls, we have modified the push-up. That is, instead of the toe, the knee also will be placed on the ground and the legs will be crisscrossed at the back near the ankle. हिंदी में बता दीजिए आप ध्यान दीजिएगा कि गर्ल्स लड़कियों के लिए पहले जो बॉयज के लिए था वो टो और पाम प्लेस किया जाता था ग्राउंड में. लड़कियों के लिए जो मॉडिफाइड पुशअप है उसमें घुटनों के बल पे बच्चा रुकेगा प्लस उसके हाथ पे और टांगों की जो पार्ट है वो एंकल के वहां पे क्रिस क्रॉस किया जाएगा. Apart from this, everything else remains the same for girls as well. बाकी सब पुशअप का जो प्रक्रिया है वो सेम रहेगा जो बॉयज का था. उनके बच्चों का हाथ शोल्डर डिस्टेंस पे रहेगा और बच्चा जब हाथ फ्लेक्स रहेंगे स्ट्रेट और जब एक्सरसाइज करेगा जब तक एल्बो 90 डिग्री तक नहीं आता तब तक उसको नीचे आना है फिर वापस अपने पोजीशन पे जाना है. Once the participant is exhausted, tap the stop timer option and type in the number of correctly completed push-ups. आप ध्यान दीजिएगा जैसे पहले बताया बॉयज की पुशअप में जैसे ही बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता है या उसकी क्षमता पुशअप करने की क्षमता खत्म होती है आप टाइमर को ऑफ कीजिएगा, स्टॉप कीजिएगा और आप ध्यान दीजिएगा कि बच्चे का करेक्ट पुशअप अगर वो बच्चा आधे में उठता है तो वो इट इज नॉट काउंटेड. आपका जब तक बच्चा पूरा पुशअप नहीं कर सकता उसको काउंट करते हुए उसकी जो करेक्ट पुशअप्स है उसका नंबर आप नोट कीजिएगा. Push-ups in the designated place on the screen. Scan the ID card of the participant and then save the record by tapping on the save option. आप जैसे बच्चे का एक्सरसाइज खत्म हो जाता है और उसके स्कोर आप एंटर करते हो आप उस बच्चे का आईडी कार्ड लीजिएगा उसको स्कैन कीजिए. आप जैसे ही स्कैन करोगे उस बच्चे का पूरा डिटेल आ जाएगा और उसी के बाद उसको सेव बटन पे दबाते हुए आप ये टेस्ट कंप्लीट कीजिएगा. This completes the push-up test. नेक्स्ट एक्सरसाइज है 30 सेकेंड पार्शियल कर्ल अप. आइए वीडियो देखें. To conduct the partial curl-up test, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. From various test options, select Strength and then. जैसे मैंने पहले बताया कोई भी टेस्ट हो आपको ऐप खोलना है, टेस्ट पे क्लिक करना है और जैसे मैंने पहले बताया कि इस पे भी ये भी एक्सरसाइज जो है वो स्पीड पे क्लिक स्ट्रेंथ पे क्लिक करना है. आप ऊपर देखिएगा पार्शियल कर्ल अप फॉर 30 सेकेंड्स. आप ध्यान दीजिएगा पार्शियल कर्ल अप फॉर 30 सेकेंड्स. दैट मींस ये एक्सरसाइज जो है 30 सेकेंड का है. उस पे क्लिक कीजिएगा. इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो वो हमेशा वीडियो देख सकते हैं राइट हैंड साइड में और इन्फॉर्मेशन भी है. तो दिस इज फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स.
since this is the last test, I just want to say कि कभी भी कोई टेस्ट कैसे करना है अगर कंफ्यूजन है तो हर टेस्ट के सामने एक YouTube की तरह एक वीडियो का लिंक दे रखा है और एक आई करके दे रखा है, उसमें आप वीडियोस को खुद देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन देखना है तो आप चेक कर सकते हैं. सो कभी भी कोई कंफ्यूजन हो आप वीडियो में क्लिक कर सकते हैं. सॉरी. Tap on the partial curl up option. The app is now ready for the partial curl up test. Partial curl up test measures abdominal muscular strength and endurance of the abdominals and hip. ये टेस्ट में हम लोग जनरली बच्चों का एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं. Flexors, which is important in back support and core stability. इसके इक्विपमेंट जो है आपको जैसे बताया, या तो एक जिम मैट लीजिए और या तो एक योगा मैट लीजिए, लेकिन उस पे दो टेप पैरेलल लाइंस की 2 टेप लगाइएगा जिसका डिस्टेंस मिनिमम जिसका डिस्टेंस 6 इंच होना चाहिए. A flat, clean cushion surface, 2 parallel strips 6 inches apart is required to conduct this test. जैसे मैंने बताया, ये जो टेस्ट का इक्विपमेंट है, मैट के ऊपर पहला एक टेप लगाइए, उसके पैरेलल में आप जो दूसरा टेप लगाते हैं उस दोनों टेप का अंतर 6 इंच होना चाहिए. द डिफरेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस शुड बी 6 inches. And you ask the subject or the students to lie down with the flexed knee at the 90-degree angle, and the shoulder of the child should be touching the ground. The neck should be lifted. The subject lies on the cushioned flat clean surface with knees flexed, usually at 90 degrees, with hands straight on the sides with palms facing downwards. अब ध्यान दीजिएगा, जब बच्चे का हाथ है वो नीचे की तरफ होना चाहिए. It should be touching the ground with the palms down. और ये ध्यान दीजिएगा, the child's hand should not cross the first line. It should be behind the first line. It should be closer to the ground and parallel to the body. The subject raises the trunk in a smooth motion, keeping the arms in position, curling up the desired amount at least 6 inches above ground. The trunk is lowered back to the. अब ध्यान दीजिएगा कि जब बच्चा पोजीशन में रहता है, उसके बाद जब स्टार्ट करते ही उस बच्चे को अपना बॉडी को आगे की तरफ उठाना है और हाथ को स्लाइड करते हुए आगे लेके जाना. आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें बच्चा अपना हाथ उठाता हुआ आगे नहीं रखना. He has to slide his hand towards the second line and see that he touches the second line or else crosses the second line. The floor that the shoulder blades. And the maximum, he can come up to the 45-degree angle. Once the child comes to 45-degree angle, he will cross 6 inches. Upper back touches the floor. Once the participant is ready and is in position to take the test, the start timer option should be tapped. जैसे ही बच्चा तैयार रहता है, आप उसको स्टार्ट बोलिएगा और स्टार्ट टाइमर क्लिक कीजिएगा. ध्यान दीजिएगा, बच्चों को एनकरेज कीजिए और बताइए कि आधे लाइन तक जाके वापस नहीं आना, उनको पूरा 6 इंचेस क्रॉस करना है अपने हाथों से. Participant is encouraged to keep normal breathing rate. Results are better. बच्चों को बोलिएगा कि नॉर्मल ब्रीदिंग रहे, कूल रहे और फ्लेक्स करे प्रॉपर्ली, सो दैट उसका नंबर ऑफ कर्ल्स जो है आगे ज्यादा हो. Great. Results are better if the participant can maintain constant pace during the activity. Maximum number of sit-ups in 30 seconds. जैसे 30 सेकंड खत्म होगा, the timer automatically stops and the assessor should count the number of sit-ups he has completed in 30 seconds. Is recorded. The timer automatically stops at 30 seconds mark. The number of sit-ups. अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 30 सेकंड खत्म is recorded at the designated place. जैसे 30 सेकंड खत्म हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऐप है उसका टाइमर स्टॉप होगा and the assessor should write the exact number of correct sit-ups he or she has completed.
The ID card of the participant is scanned and the data is saved by tapping on the save option. As soon as it's complete, you enter the data, the child's ID card can be scanned and save option can be pressed so that the test is completed. This completes the partial curl-up test. You can do a recap, Ratish. Hello. Yeah, let me see. Maybe recap. Just do that. Ratish, you can just do that recap. Okay. All the tests? Just yeah, Neeraj, just go one step back and just a recap of the test. Once. No, वो recap जो था. Test का recap. 1 second, I'm sharing it. 1 second. Yeah. Yeah, as you know that आपने देखा कि हमारे पास 2 लेवल के टेस्ट थे. That is for class 5 to 8. No, class 1 to 3. Sorry, class 1. Sorry. 2 एज के टेस्ट है. एक तो है 5 to 8 जो है क्लास 1 to 3 के लिए. उसमें आता है BMI, फ्लेमिंगो बैलेंस और प्लेट टैपिंग. और जो दूसरा कैटेगरी है दैट इज फॉर 9 साल से 18 साल के लिए. दैट इज फ्रॉम क्लास 4th to क्लास 12th. उसमें आता है आपके 6 टेस्ट आते हैं. दैट इज बॉडी बैलेंस, BMI, सिट एंड रीच, 50 meters dash, 600 meters रन और वॉक, और पुशअप फॉर बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स. और जो लास्ट टेस्ट है वो है पार्शियल कर्ल. Right. So the next one, this is the importance of assessment done the right way. So I just want to tell all the participants that what is very important is the assessment has to done exactly the right way. ये बहुत important है. ये हमने सारे टेस्ट देखा है, but the most important thing that the fitness assessment for all children has to be done the right way. हमने 22 लाख assessment किया था last year. ये जो है ये पर्पस है to collect the data the right way. क्योंकि अगर हम बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अगर सही तरीके से नहीं होगा तो वो ये जो पेरेंट्स इस रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे सो दे विल अंडरस्टैंड. बहुत इजी है देखने के लिए कि BMI का डेटा गड़बड़ हो गया है, या तो उनको बच्चे को पता होता है कि बच्चे का स्पीड अच्छा है कि नहीं है. काफी पेरेंट्स को थोड़ा बहुत पता होता है. तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी PE टीचर्स है वो रिपोर्ट कार्ड को सही तरीके से बनाएं. दूसरा इंपॉर्टेंट है कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट करेक्ट डेटा विल इंश्योर कि सही बच्चा आइडेंटिफाइड है रॉ टैलेंट के लिए. अगर रॉन्ग डेटा हम डालते हैं जो डिजर्विंग एथलीट्स है उनको वो ऊपर तक नहीं जा पाएंगे. एज एन एग्जांपल कि कोई एक्चुअली मैथमेटिक्स में 97 98 है, आपने उसको 60 दे दिया, और जिसका 55 60 है आपने उसको 95 दे दिया बाय मिस्टेक और व्हाटएवर. सो व्हाट विल हैपन इज जिसको आपने जो 65 वाला बच्चे को आपने 90 दे दिया, जब वो जाएगा नेक्स्ट लेवल पे वो वहां पे वो क्लियर नहीं कर पाएगा. बट जो 95 जिसका होना चाहिए उसको आपने 60 दिया तो उसको चांस ही नहीं मिला. सो मेक श्योर कि हम जो इसमें बात करते हैं तो हमारा, क्योंकि हम इसे फेक नहीं कर सकते, कुछ भी करें तो सही बच्चे को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है. सेकेंड है कि ऑलवेज यूज द एप्लीकेशन टू डू द रिकॉर्डिंग. आप नो नीड ऑफ पेपर एंड पेन एंड पेपर की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं. एंड सही डेटा जो 4th पॉइंट है, करेक्ट डेटा से ही हमारा नेशनल बेंचमार्क बन सकता है. केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 55 लाख असेसमेंट किया हुआ है. तो 55 लाख की असेसमेंट की डेटा हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर का डेटा में बहुत इनकरेक्ट डेटा था, बट इस साल जो हम डेटा देख रहे थे उसमें काफी क्लियर हो गया डेटा. सो ये हैबिट की बात है, आप अपना हैबिट को बढ़ाइए. अनयूजुअल सिचुएशन है कि हाइट कैन नॉट रिड्यूस ओवर टाइम. आपने फर्स्ट टाइम 150 डाल दिया, अगले बार 145 डाल दिया, तो सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि 145 सही है कि 150 सही है, क्योंकि आपने गलत डाल दिया तो आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड काफी बार रिजल्ट ये नहीं होना चाहिए वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी बहुत ऊपर हो गया. तो हमने एक्चुअली 850 सैंपल डेटा हमने लास्ट ईयर पिक किया था जो बेस्ट है. जब हमने देखा उनके डेटा को, हमने देखा कि बहुत सारे डेटा थे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी बहुत अच्छा है. ये पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली जो टेस्ट रिजल्ट है वो ड्रास्टिकल चेंज नहीं होता हर 6 महीने में. ये एग्जाम्पल से एक्चुअल डेटा है जो हमने खेलो इंडिया से पिक किया था. You can see that it is not possible to do lot of things. कि आपने बहुत छोटे बच्चे 10 साल का बच्चा है वो 8 सेकंड में ही कंप्लीट कर लिया, वो पॉसिबल नहीं है. कुछ बच्चों का हमने डाल रखे 0.55 मिली सेकेंड में उन्होंने 50 मीटर डैश कर लिया. कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है. और किसी ने एक्चुअली शायद एज जो है
4 साल का डाल दिया और ये मतलब डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ हुआ होगा इसलिए वो एज भी गड़बड़ हो गया। ये बच्चा 4 साल का बच्चा क्लास 3 में हो ही नहीं सकता है। तो ये सारे गलत डेटा नहीं होना चाहिए। आप ये देखेंगे जो सिट एंड रीच का 1155.5 डाला हुआ है, इतना सेंटीमीटर का डेटा डाला हुआ है। तो हमने काफी प्रोटेक्शन कर दिया है सिस्टम में बाई 15% का अलाउंस देके, बट ये शायद या तो डेटा एंट्री में गलत है या गलत किया है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, टूल, टेस्टिंग प्रोटोकॉल, टेस्टर एक्सपर्टीज। टूल्स का मतलब है कि वो जो टूल्स यूज कर रहे हैं, जैसे हमने सिट एंड रीच बॉक्स है, अगर उसका डायमेंशन सही नहीं है तो उसका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। अगर हमारा हाइट एंड वेट का जो मशीन है, जो डिजिटल स्केल है, अगर कैलिब्रेटेड नहीं है तो सही नहीं आएगा। इसीलिए हर चीज का टूल सही होना चाहिए। पार्शियल कलर पे अगर 6 इंचेस का बदले 8 इंच कर दिया है, 5 इंच कर दिया तो रिजल्ट में गड़बड़ होगा। तो टूल का मतलब नहीं कि कोई मशीन है, इवन दैट मार्किंग ऑन द टेप, ये सारे प्रॉपर होना चाहिए। टेस्टिंग प्रोटोकॉल, जो हमने टेस्टिंग प्रोटोकॉल दिया हुआ है, 30 सेकंड मतलब 30 सेकंड होना चाहिए, 35 नहीं होना चाहिए, 25 नहीं होना चाहिए। 50 मीटर को 45 नहीं कर सकते, 60 नहीं कर सकते। तो हम टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को भी हम सही तरीके से फॉलो करेंगे, प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करेंगे, सो देन इट विल बी, द रिजल्ट्स विल बी गुड। The third thing is the tester expertise. So all of you need to practice so that your margin of error actually reduces over time. So these are the 3 things. Now the next session is going to be on reading of report card and talent identification roadmap. Neeraj, please explain to everyone about how to read a report card. Thank you so much, sir. Good morning, everyone. We have done our test. We have uploaded data, everything. Technically, we are equipped. But after doing all this exercise, the result is beautiful, because personally, I feel कि इतना elaborated, detailed result, children look forward for this. And then once they see, it's easy to say that you are not fit, but where the child is not fit, strength is not good or speed is not good. Elaborated, we are generating the report card. But before going to the report card, as sir and my dear colleagues have already explained you about how to register school, obtain username, password, this 5-step process, how to upload student data, how to generate student ID, how to link the SSL with the school, how to promote or transfer the children. These are the 5 IT sector steps which we have to complete, which we have done. And now in this session, we will be learning, हमने IT अपना डेटा अपलोड कर दिया, हमारा पोर्टल रेडी है, हमने टेस्ट ले लिया, हमारे टीचर्स इक्विप्ड हैं टेस्ट लेने के लिए. Now after taking the test, we are going to learn how to generate the report card. Report cards, once again, we are going to download or generate from the school principal portal, which we have created, where we have uploaded the data. So in that, उसके लिए हमें फिर से क्रोम से schoolfitness.kheloindia.gov.in and then again we will log in. वो complete detail हम आपको दिखाएंगे how to report the generate card. And in this session we will be talking about the parent app. Till the time today, we have learned about the application used for the assessor by the school. Fine. But अब इसमें हम सीखेंगे कि पेरेंट्स के लिए भी है. मैंने पहले भी बताया था कि next one, Neeraj. Actually, we are already at 10:21. Okay, sir. Thank you, sir. So now how to download the report card. हम लोगों ने schoolfitness.india fitness हम लोग इस क्रोम पर आए. उसके बाद जब हमने लॉगिन किया और हमें स्कूल रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना है, वीडियो एंड अलोंग विद दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें अपने रिपोर्ट कार्ड को जनरेट करना है और हाउ उसको रीड आउट कैसे करना है, हाउ टू एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन आल्सो. To view report of student fitness assessment, click on login button, enter user ID and password, enter CAPTCHA, click on. Here we are signing up in the principal portal. हम अपने स्कूल के HM और प्रिंसिपल के पोर्टल में साइन अप कर रहे हैं. प्रिंसिपल इज साइनिंग अप. On sign in button, click on reports, click on फोर्थ टैब रिपोर्ट्स. हम फोर्थ टैब रिपोर्ट्स में जाएंगे. यहाँ पे स्कूल की फिटनेस स्टैटिस्टिक्स आपको दिख रही है. 760 स्टूडेंट्स, अप्रूव्ड एसेसर, और उसमें आप रिपोर्ट्स कॉलम पे क्लिक करेंगे. term report, select school,
select term, click on view button, click on this view button, select the class, टर्म रिपोर्ट में जाने के बाद आपने स्कूल सेलेक्ट किया, क्लास सेलेक्ट किया और क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपने व्यू में आप गए, आपको पूरी क्लास की लिस्ट ओपन हो जाएगी। To view the report, click on this view button, select the student of which The moment you will click on it, आपके पास वो पूरी स्ट्रेंथ खुल करके आएगी। इसमें यहाँ पर दिखा शो 10 एंट्रीज, इट कैन बी 25, इट कैन बी 30, पूरी स्कूल आपके पास रिपोर्ट यहाँ पर व्यू होगी। आप उसको ऊपर आप देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर का टैब है, डाउनलोड रिपोर्ट। क्लास की कंपाइल्ड रिपोर्ट भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। you want to view the report, click on this view button, डाउनलोड टैब में आप जाके पूरी क्लास की डाउनलोड कर सकते हैं और व्यू के साथ आप जब जाएंगे आप इंडिविजुअली ईच चाइल्ड कैन गेट द डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड, दिस कलरफुल रिपोर्ट कार्ड यू कैन सी, जिसमें हम बच्चों को उसके बेंचमार्क के साथ प्रीवियस एंड करंट बोथ वी विल बी प्रोवाइडिंग। this is the fitness assessment report of the student. In this report card the benchmarks are given, पूरा डिटेल रिपोर्ट कार्ड है। बच्चे का फिटनेस जो हमने टेस्ट लिया था उनका फ्लेमिंगो, दिस इज अ क्लास 1 चाइल्ड, मींस बच्चे ने 3 टेस्ट दिए हैं आपके। फर्स्ट इज अ बीएमआई, बीएमआई में आप देख सकते हैं उसका ये जो कलर कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हैं, कलर स्कीम, दिस एवरी कलर हैव अ सिग्निफिकेंस। स्कोर्स में आप जब जाएंगे तो आपको L1 से लेके L7 तक स्कोर्स हैं, means L1 is the lowest, L7 is the highest. L1 means need to improve, must work hard, और L7 is your child is sports fit. अब benchmark यहाँ पर आप देखिए नीचे, work harder, L1 is a work harder, must improve, L2, L3 is can do better, L4 good, L5 very good, L6 athlete, means child can learn the sports, and L7 means a child is ready to learn a formal sports. Child is ready to learn formal skills. At the bottom here you will be getting all the recommendations. बच्चे के डाइट से लेके एक्टिविटीज से, अगर बच्चे का बैलेंस पुअर है तो उसकी बैलेंस की रिकमेंडेशंस होंगी, अगर बच्चे की अंडरवेट है तो उसकी डाइट रिकमेंडेशंस होंगी, एंड एट द बॉटम देयर विल बी द चाइल्ड खेलो इंडिया आईडी आल्सो, सो द पेरेंट्स कैन सी इट ऑन द पेरेंट्स ऐप आल्सो। You can even download the report. Click on this download report button. This way individual report card can be downloaded. ये जब हमने रिपोर्ट कार्ड, I'll show you again. Now again click on reports. Click on age wise performance. Select the school. अभी हमने जो रिपोर्ट कार्ड निकाला वो क्लास वाइज निकाला, पूरे क्लास के बच्चों का इंडिविजुअल रिपोर्ट कार्ड निकाला। अब हमें निकालना है एज वाइज रिपोर्ट कार्ड। इफ यू वांट टू टेक अप द रिपोर्ट कार्ड, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम कि आप बच्चों का एज वाइज रिपोर्ट कार्ड निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल रिपोर्ट कार्ड निकाल सकते हैं, बच्चों का क्लास वाइज निकाल सकते हैं, इवन स्किल वाइज टॉप 10 निकाल सकते हैं, और स्कूल वाइज भी पूरे स्कूल में आपको दिखाई दे सकता है मेरे स्कूल का स्ट्रेंथ लेवल पुअर है, मेरे स्कूल की स्पीड लेवल पुअर है। सो इन ऑल द पैरामीटर्स, एनीथिंग आपको जिस पैरामीटर में आप रिपोर्ट कार्ड चाहिए, मोस्ट पैरामीटर्स आर गिवन हियर। आपको एज वाइज चाहिए, आपको एज वाइज आपके पास आ जाएगा टिल द एज ऑफ 8 years। ये हमारा फिटनेस स्टैंडर्ड है। Select term, select age, click on this view button. Just see, उस एज ग्रुप में हमने अभी सेलेक्ट किया 5 to 8 years एज ग्रुप, और उसका वो पूरा दिखाई दे रहा है आपको कि बीएमआई कैसा है उसका, और कितने बच्चे हमारे L7 में है इस एज ग्रुप में,
कितने बच्चे हमारे L3 में हैं, मतलब पूरा आपको ट्रांसपेरेंटली कि मेरे क्लास 3 तक की, मेरे स्कूल की क्लास 3 तक का फिटनेस स्टैंडर्ड कैसा है एज वाइज. This is how you can see age-wise performance report. Again, click on reports, click on school-wise performance, select the school, select term, click on view button. हमने क्लास वाइज रिपोर्ट कार्ड देखा, हमने एज वाइज रिपोर्ट कार्ड देखा. You can see the report card is school wise, how my complete entire school performance is on the basis of their fitness components which we have picked up. हमने लिया flexibility, sit and reach. मेरे स्कूल की complete स्कूल की overall flexibility standard कैसा है, इसमें दिख रहा है आपको. L1 is a red, means alarming. आप इसको, इसमें दिख रहा है हमें about to 54% of strength my school is in L1. And about last में आप blue में देख रहे हैं, it's after 75, हमारे पास 75 means कि 25% के approximate students हैं मेरे पास जो L4 से L7 में आते हैं, तो means 50% ज्यादा. इससे पता चल सकता है कि हमें flexibility पे काम करना है. हमें endurance दिख रहा है कि endurance में 600 run and walk में more than 75% students are L1. तो पूरा स्कूल वाइज आपके पास एक डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड आ जाता है कि मेरे स्कूल का फिटनेस स्टैंडर्ड क्या है, उनकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, पूरे फिटनेस कंपोनेंट्स के साथ आ रहा है कि इस कंपोनेंट में आपका स्कूल लैग कर रहा है, आपका स्कूल बेहतर कर रहा है. जैसे आप ये देख सकते हैं 5 फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, जस्ट 1% और 2% चिल्ड्रन आर येलो, रेड 1. उसके बाद आप देखिए पूरा आपको 90% स्टूडेंट जो है हमारे have good balance. So means कि we can work into that areas for the competition preparations. This is school-wise performance report. Now again click on reports. Click on this report. जितना आप इसको एक्सप्लोर करेंगे you'll find lot of ब्यूटीफुल ऑप्शंस, जिससे आपको खुद भी इनहेंस फील होता है. बच्चे को आप उसके बाद एज वाइज आप रिपोर्ट कार्ड निकालिए, आप क्लास में लगाइए, चाइल्ड फील मोटिवेटेड. आप टॉप 10 निकालिए क्लास के, उसमें दिखता है मैं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड इज रेस इज ओवर, नाउ यू पुट अप द टॉप 10 इन फिटनेस. उसमें देखिए बच्चे हाउ द चाइल्ड गेट मोटिवेटेड टू प्ले नाउ. इफ द चाइल्ड फील आई एम फिट टू प्ले मींस द चाइल्ड विल प्ले. टॉप परफॉर्मर्स, select school, select term, click on view button. आपने स्कूल के टॉप परफॉर्मेंस निकाले सेकंड टर्म के, फर्स्ट टर्म के. आपके पास जितने L7 बच्चे हैं वो फिल्टर आउट होके आपको दिख रहा है. L7 means the child is ready to play football or to learn a formal sports fit. L7 means कि आपका बच्चा sports fit है. आपके पास ये स्पोर्ट्स फिट वाले बच्चों की लिस्ट सामने दिख जाती है. और चाइल्ड आल्सो फील मोटिवेटेड टू प्ले एंड इट इज इजियर फॉर द स्पोर्ट्स टीचर्स आल्सो टू पिक अप सम टाइम. At the point of view of the fitness, we know these children are fit. We can motivate them to learn formal sports. Rest we have to pay attention to get fit. Here you can see top performers. मेरे पास रिपोर्ट कार्ड आया, मैंने टॉप परफॉर्मर्स निकाले. L7 मेरे पास 22 स्टूडेंट्स आ रहे हैं. उसके बाद L6 मेरे पास कितने हैं, उसके बाद L5 कितने हैं मेरे पास. तो it is visible at top performers. And see there even the percentage are graphically. आपने देखा अभी ग्राफ्स में रिपोर्ट कार्ड आ रहा था बच्चे का कलर्ड में. अभी आपने देखा उसका परसेंटेज भी लिखा हुआ है उसका साइड में कि परसेंटाइल, परफॉर्मेंस परसेंटाइल क्या है उस बच्चे का. So this was the report section. Thank you. So just I'll go through this step by step. First, how to हमें थोड़ा सा ना फास्ट करना पड़ेगा. We already will have to take some questions also today. So हमें थोड़ा सा you want to accelerate. I also need to accelerate a little bit. Okay sir. Okay. ये स्टेप बता दो. स्टेप बता दो, फिर उसके बाद एक दो रिपोर्ट कार्ड बताना इसके बाद. जी सर.
most of already explained. These steps you all can take the screenshot also. आपको 4th tab में report cards में जाना है. Step 1, go to report card, then select term, select your school, and you can view also the term report. You can download also the term report. You can see the report card class wise also. You can download, and as I told you, top performers also you can see. And as already we have seen in the video कि हम ग्राफ्स में बच्चों का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं. अपार्ट ऑफ दैट दिस रिपोर्ट कार्ड आल्सो अलाउ. जब आप पूरे क्लास का रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करते हैं, दिस कम्स अप जिसमें A+ A and A- मींस A+ इंप्रूव करना है, देन सेम एज बिफोर, बच्चे का इंप्रूवमेंट नहीं है. इसमें कंपैरेटिव आपको दिखाई देता है कि प्रीवियस स्कोर क्या था बच्चे का, करंट स्कोर क्या था, इंक्लूडिंग BMI. BMI में उसके बेंचमार्क के साथ दिखाई देता है कि वो उस बच्चे का बेंचमार्क अंडरवेट है तो क्या होना चाहिए, अलोंग विद द रिकमेंडेशन. ये एक ग्राफिक वाला है जो हमने अभी वीडियो में भी देखा. आपको BMI दिख रहा है, उसका नॉर्मल वेट है. रेस्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि दिस अंडरवेट, द चाइल्ड इज अंडरवेट. उसका बेंचमार्क भी आपको BMI का दिखाई दे रहा है नीचे कि ये बच्चा अंडरवेट है तो इसका बेंचमार्क ये होना चाहिए. सो द पेरेंट्स आर गेट टू नो कि मेरे बच्चे का वेट है कितना और कितना होना चाहिए, और उसकी डाइट रिकमेंडेशन. अगर अब इस ग्राफ्स वाले रिपोर्ट कार्ड में आप देखेंगे हर फिटनेस कंपोनेंट्स के सामने आपको दिया हुआ है कि बच्चा आपका L1 है तो उसे करना क्या है. वो इंडिकेटर दिया है, वर्क हार्ड, उसको फीडबैक भी दिया हुआ है कि उसको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है. दिस ऑल कंप्लीट की रिजल्ट, मतलब आपको पूरा फिटनेस रिलेटेड पूरा की डिटेल्स इसमें दिया हुआ है आपके बच्चे का. यहाँ पे रुक के एक्सप्लेन कर लेते हैं इनको. आई थिंक यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर लेते हैं. आई थिंक नहीं, इसका नेक्स्ट वाले में कर लेते हैं एक्सप्लेन. नेक्स्ट वाला या तो रिपोर्ट कार्ड में बेसिकली 2 पार्ट्स है सबके लिए. कि एक तो है कि जो 2 इंडिकेटर्स है, एक फिटनेस की इंडिकेटर है, दूसरा हेल्थ इंडिकेटर. अभी हम फिटनेस की इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं जिसमें लेवल 1 टू लेवल 7 है. 7 लेवल्स है. हम जो लेवल 7 है कि जो बच्चा 90 परसेंटाइल से भी ऊपर है, मतलब हर टेस्ट में वो 90 से ऊपर है. लेवल 6 हो गया कि वो 80 परसेंटाइल के ऊपर है. लेवल 5 का मतलब है कि 70 के ऊपर है, और लेवल 4 है 60 के ऊपर है. लेवल 3 40 के ऊपर है, लेवल 2 20 के ऊपर है, लेवल 1 20 से नीचे. तो ये मोटा मोटा है. तो हर टेस्ट में हर एज एंड जेंडर, तो हमारे लिए क्लास एज 5 से लेके 18 है, तो 14 एज ग्रुप से बॉयज एंड गर्ल्स है. हर एक की अलग अलग बेंचमार्क्स बने हुए हैं लेवल 1 टू लेवल 7 के हिसाब से. तो एक क्लास में अगर क्लास 9 10 मान लीजिए क्लास 5th का बच्चा है, तो उस क्लास में 10 साल का भी बच्चे होते हैं, 11th के भी होते हैं, 9 साल के भी बच्चे होते हैं, एंड बॉयज एंड गर्ल्स. तो जब भी हम रेस कोई भी टेस्ट करते हैं, टेस्ट के बाद जब हम सिस्टम में आ जाता है, सिस्टम उसकी एज ग्रुप के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से ही उसको चेक करता है. ये नहीं कि क्लास के हिसाब से. जो भी बच्चा लेवल 4 से नीचे होता है उन सबके लिए फीडबैक दिया जाता है. जैसे सीक्रेट निच में लिखा हुआ है, यू कैन इंप्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी बाय स्ट्रेचिंग, बाय डूइंग चक्रासन, हलासन, वो सारे दे रखा है. 50 मीटर के लिए दे रखा है कि यू कैन फर्दर इंप्रूव योर रिएक्शन टाइम, एक्सेलरेशन टू क्विक स्प्रिंट, फ्रॉग हॉप और 1 लेग हॉप करना चाहिए. आपको स्ट्रेचिंग करना चाहिए, लेग स्ट्रेचिंग करना चाहिए, सो दैट आपका स्ट्राइड का लेंथ बढ़ जाएगा. तो हर टेस्ट के लिए अगर आप देखेंगे पार्शियल कर्ल में भी दे रखा है कि आपको स्टेयर्स क्लाइंब करना है, वॉकिंग करना है, साइकिलिंग करना है, डांस करना है, पुश अप, सिट अप, स्क्वाट, प्लैंक्स, नौकासन, शवासन, धनुरासन, ये सारी चीजें दे रखा है कि हर टेस्ट में कैसे. और ये एक्चुअली अगर हम देखा जाए बच्चा का, अगर हम 5 लोग हैं, 5 लोग हम लेवल 6 में हो सकता है कि मेरा बैलेंस खराब है, नीरज के ये फ्लेक्सिबिलिटी खराब है, सूर्य सर का उनका स्पीड खराब है, और किसी का एंड्योरेंस है. तो हमें उस एरिया में काम करना है. ये नहीं कि सबका स्कोर लेवल 6 है तो सारे सेम है. बेसिकली हमें हर बच्चे का स्ट्रेंथ और वीकनेस इसके थ्रू दिख जाता है. नीरज नेक्स्ट वन. तो ये जो है, ये आप देखेंगे 12 ईयर ओल्ड बॉय का बेंचमार्क है, लेवल 1 टू लेवल 7. लेवल 7 मतलब वो स्पोर्ट्स फील्ड में हर स्पोर्ट्स में खेल सकता है. लेवल 6 मतलब एथलेटिक है, फिर वेरी गुड है, फिर गुड है लेवल 4, फिर कैन डू बेटर, मस्ट इंप्रूव और वर्क हार्डर. ये सारे पॉजिटिव फीडबैक है बच्चे के लिए. कहीं पे भी हमने ना तो पुअर लिखा ना वेरी पुअर लिखा हुआ है. सेकंड बेंचमार्क, सेकंड चीज है उसका BMI, माई BMI और उसका बेंचमार्क है. BMI मतलब उसका हेल्थ इंडिकेटर है. जो हमारा अच्छा फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है, 2 इंडिकेटर्स है, फिटनेस लेवल इंप्रूव होना चाहिए और हेल्थ इंप्रूव होना चाहिए. BMI हेल्थ इंडिकेटर है,
तो इसमें हम अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट एंड ओबीस 4 चीजें हैं उसमें, एज एंड जेंडर के हिसाब से। और उसके नीचे आप देख सकते हैं 3 चीजें हैं। डाइटरी रिकमेंडेशन है, एक्टिव लाइफस्टाइल का रिकमेंडेशन है। ये डाइटरी रिकमेंडेशन के अंदर कैलोरी इनटेक, फूड रिस्ट्रिक्शन और हेल्थियर चॉइसेस क्या क्या है। एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी इज अबाउट कैलोरी इनटेक एंड हाउ यू बर्न द कैलोरी। और सबसे नीचे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन टू पेरेंट्स कि डाउनलोड द खेलो इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, क्रिएट योर अकाउंट और उसमें बच्चे का आईडी आप डाल दीजिए ताकि आप उसका रिपोर्ट कार्ड देख सकें। सबसे लास्ट लाइन जो है वो पेरेंट्स के लिए है कि आप खेलो इंडिया का ऐप को डाउनलोड कीजिए, बच्चे का जो भी खेलो इंडिया का आईडी आप उसके साथ लिंक कर लीजिए, सो दैट यू कैन सी द रिपोर्ट कार्ड। तो मोटा मोटा अगर हम रिपोर्ट कार्ड अभी देखा हमने, छोटे बच्चों के लिए 3 टेस्ट, बड़ों के लिए 6 टेस्ट, हर एक में लेवल 1 to लेवल 7 है। बच्चे का कौन सी टेस्ट में कौन से लेवल है वो इंडिकेट करता है। और पीएमआई में वो अंडरवेट है, नॉर्मल वेट है, ओवरवेट है, ओबीज है, उसका वेट को रिड्यूस करना है, इंप्रूव बढ़ाना है, वो भी उसमें रिकमेंडेशन। नेक्स्ट ये है। सो नाउ वी आर एट द पेरेंट ऐप। पेरेंट ऐप में जो है, पेरेंट ऐप में आप अपने सारे पेरेंट्स को बताइए कि येलो कलर का आइकन है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से। ये है खेलो इंडिया ऐप का नाम है, जिसमें 3 मेन चीजें हैं, स्पोर्ट्स रूल्स, फाइंडिंग प्ले फील्ड्स एंड टेकिंग फिटनेस टेस्ट और लुकिंग एट द डैशबोर्ड। ये 4 चीजें हैं उसमें, उस रिपोर्ट कार्ड में। जो फर्स्ट वाला है, एक सेकेंड, लेट मी, आई विल जस्ट टेक ओवर फ्रॉम हियर। सो इसमें जो है, इसमें 4 चीजें हैं रिपोर्ट कार्ड में। पहला वाला है, फर्स्ट वन इज प्ले फील्ड, 18 खेलो इंडिया के स्पोर्ट्स हैं। और सेकंड है कि जो वहां पे अगर आसपास में, अगर चंडीगढ़ में रहते हैं तो चंडीगढ़ में कौन कौन से प्ले ग्राउंड में आपके घर के आसपास, वो भी देख सकते हैं। थर्ड है फिटनेस टेस्ट, आप अपने बच्चे का खुद फिटनेस टेस्ट दे सकते हैं। और चौथा है उसका डैशबोर्ड। हर पेरेंट चाहता है कि बच्चे का फिटनेस असेसमेंट कराए, घर पे भी करा सकते हैं, स्कूल का डैशबोर्ड देख सकते हैं। तो ये हम छोटा सा देखते हैं कि बच्चे, अगर पेरेंट ने खेलो इंडिया का ऐप डाउनलोड कर लिए हैं तो अपने बच्चे का असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। This is Khelo India parent application. Click on get. तो इसमें जो पेरेंट अगर उसको डाउनलोड करते हैं ऐप को, तो उसमें 4 पार्ट है, लर्न, प्ले, गेट फिट और सोशल मीडिया। तो लर्न इज बेसिकली अबाउट लर्निंग अबाउट 18 स्पोर्ट्स, 18 खेलो इंडिया के स्पोर्ट्स के बारे में, उसको रूल्स के बारे में देख सकते हैं। प्ले का मतलब है प्ले फील्ड्स को देख सकते हैं। गेट फिट का मतलब फिजिकल फिटनेस असेसमेंट घर पे भी कर सकते हैं और स्कूल के भी फिटनेस असेसमेंट कर सकते हैं। Get fit button. Sorry. This is Khelo India parent application. Click on get fit button. Click on add member. जब आप गेट फिट में क्लिक करेंगे पेरेंट्स, तो उसमें उनको सारे टेस्ट दिख जाएंगे 5 to 18 ईयर्स और 9 to 18 ईयर्स का। क्या हो रहा है? This is Khelo India parent application. Click on get fit button. Click on add member. Here you can add member. आप मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर पहले लॉगिन कीजिए। First of all, enter your user ID. पेरेंट्स को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा इसमें। Enter password. पेरेंट्स को अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा एक बार लॉगिन करेंगे तो। Select tick box. चेक बॉक्स करके अपना Click on login button. लॉगिन करेंगे पेरेंट्स। वो गेट फिट सेक्शन के अंदर 3 बच्चों को ना, By clicking on add member, you can add member. 3 बच्चे and take the test. हैं या तो कजिन है उसको। And to view report after taking test, click here. करने के बाद रिपोर्ट कार्ड कैसे दिखेगा ये देख सकते हैं कि From here you can view the report. रिपोर्ट कार्ड के ऊपर एक ब्लू कलर का आइकन है, उसका मतलब सेल्फ, मतलब मैं घर पे भी टेस्ट ले सकता हूँ। और इसके नीचे वही इंडिकेटर है जो आपको दिखाया था, BMI है।
फिर उसके नीचे ये फिटनेस के इंडिकेटर्स जो लेवल 1 टू लेवल 7 है उसके इंडिकेटर्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे सिट एंड रीच का टेस्ट है उसका हिस्ट्री भी देखना चाहता है। घर पे बैठ के पेरेंट्स खाली फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चे का फ्लेक्सिबिलिटी अगर खराब है तो फ्लेक्सिबिलिटी का हर रोज टेस्ट, मतलब हर 5 दिन में टेस्ट लेना तो मैं ले सकता हूँ, सारे टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। आई कैन सी द हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट आल्सो। क्या हो रहा है? आई डोंट नो व्हाट इज व्हाई इट इज शिफ्टिंग। To download report, you can click on download report. रिपोर्ट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। This is the downloaded report. इसमें करंट वर्सेस प्रीवियस का भी आता है, मतलब इस टर्म और पिछले टर्म में क्या था उसका भी रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं। उसका फीडबैक क्या है ये सारे वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रखना है तो रख सकते हैं इस रिपोर्ट कार्ड को। Click on fitness history. फिटनेस का हिस्ट्री देखना है तो पुराना हिस्ट्री सारे जितने भी This is the fitness history. जितने बार है सभी का हिस्ट्री देख सकते हैं, वो जब जब किया हुआ है। Click on benchmark. बेंचमार्क में क्लिक कर सकते हैं अपने एज This is the benchmark. ग्रुप में बॉय अगर 12 साल बॉय है तो उसका रिपोर्ट। So this is the parent app report बहुत section. सिंपल है। Thank you. बेसिकली पेरेंट्स घर पे भी असेसमेंट कर सकते हैं, कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। बच्चे को जब ऐड करना होता है उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ का ऐड करना है, उसका जेंडर ऐड करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ओटीपी आ जाएगा, फिर आप उसको ओके कर दीजिए, बच्चे का ऐड हो जाएगा। सो एज एन एग्जांपल यहाँ पे ऐड मेंबर कर करके तीन को ऐड किए। बेसिकली मेरे 2 बच्चे हैं, मान लीजिए एक कजिन है तो कजिन का भी मैं ऐड कर सकता हूँ। और इसमें जो है किसी भी बच्चे में क्लिक करूंगा तो जैसे 14 साल का हो, 13 साल का हो, 9 साल का, डजंट मैटर, डिपेंडिंग ऑन द एज ये नंबर ऑफ टेस्ट आ जाएंगे। 14 साल में है तो ये जैसे 6 टेस्ट है, 6 टेस्ट आ गया। इंटरफेस बहुत सिंपल है पेरेंट्स के लिए। टेस्ट कराना है, उसमें क्लिक करके और सेव करना है। डैशबोर्ड में क्लिक करते ही ये हमने देखा है कि BMI और उसकी ओवरऑल फिटनेस और हर फिजिकल फिटनेस जितने भी टेस्ट है उसमें व्यू हिस्ट्री कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे का स्कूल में फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो रहा है वो ना हो रहा हो, आप उसकी फिटनेस असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल में हो रहा है, बच्चे को आईडी ये मिल रहा है, उसके फिजिकल फिटनेस रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है, मैंने जैसे बताया था आपको, उसके नीचे लिखा हुआ खेलो इंडिया का आईडी बच्चे का, आपको क्या करना है उसको एडिट करना है और यहाँ पे जाके स्कूल एनरोलमेंट नंबर आता है तो उसका जो खेलो इंडिया का आईडी नंबर है उसको डाल के जब क्लिक कर लीजिए वैलिडेट बटन, तो उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और उसके यूनिक आईडी को वेरीफाई करेगा और एक बटन आ जाएगा इधर कॉल्ड स्कूल। आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ स्लाइड करेंगे तो घर वाला टेस्ट दिखेगा, राइट की तरफ करेंगे तो स्कूल का टेस्ट दिखेगा। घर का जो टेस्ट है वो प्रैक्टिस टेस्ट की तरह होता है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट में करते हैं, मैथमेटिक्स में घर में प्रैक्टिस करते हैं, 100 बार कर सकते प्रैक्टिस, तो ये घर का टेस्ट अलग है। स्कूल में करूंगा तो स्कूल में 2 बार टर्म 1 और टर्म 2 के रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे दिख जाएगा और स्कूल का टैब आ जाएगा। ये जो है, ये जो आपको मैंने बताया था कि लर्न करके था, इस ऐप के अंदर सारे स्पोर्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी दे रखा है। जैसे आज हम जानेंगे एथलेटिक्स के बारे में। एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और हम 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, हर्डल्स, 110 मीटर, 100 मीटर, 10,000 मीटर, मैराथन 0.22 मीटर्स होनी जरूरी है। ऑन योर मार्क्स, सेट, गन फायर। स्प्रिंट रेसेस में और फाउल स्टार्ट ना हो। आपको इसको मैं ज्यादा भी टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता हूँ, बट बेसिकली क्या 18 जो खेलो इंडिया के स्पोर्ट्स हैं, तो ये जो लर्न वाला आइकन है उसमें पेरेंट ऐप में, और इवन असेसर्स के लिए भी है, लर्न करके एक बटन होगा, उसमें जब क्लिक करेंगे तो ये 18 के 18 स्पोर्ट्स का आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे खेलना है। और ये बच्चों के साथ अब ही जैसे कोविड-19 है, आप ये सारे शेयर भी कर सकते हैं बच्चों के साथ, पेरेंट्स को दीजिए ताकि वो कर सकते हैं। Let us come to the खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन रोड मैप। बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ, जब स्कूल में फिटनेस असेसमेंट टेस्ट होगा तो 22 लाख असेसमेंट हमने लास्ट ईयर कर चुके हैं। इस साल जो है हम ये कोशिश करेंगे कि 3.5 करोड़ बच्चों का असेसमेंट हो जाए। हर CBSE स्कूल में हर बच्चे का असेसमेंट हो तो 3.5 करोड़, 3 करोड़ से ऊपर बच्चे हैं।
अगर हम उसको अचीव कर सकते हैं 90% अचीव करते हैं, सो विल हैव 3 करोड़ काइंड ऑफ दिस थिंग। उसमें से 1% बच्चों को स्कूल में वापस भेजेंगे। लास्ट ईयर जो है 22 लाख बच्चों का, 22,000 बच्चों का, जब भी कोविड-19 खुल जाएगा 22,000 बच्चों का स्कूल्स में वापस भेजेंगे कि आप उनको रीअसेसमेंट कीजिए टू चेक कि उनका असेसमेंट लास्ट टाइम ठीक था कि नहीं था। अगर वो होते हैं फिर उनको हम जो भी बच्चे उसमें से शॉर्टलिस्ट होते हैं वो साई के सेंटर में जाएंगे और उनकी रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट जब होगा तो उनको 3 एडिशनल टेस्ट कराएंगे, वो 3 या 4 टेस्ट, वो फाइनलाइज हो रहा है वो टेस्ट। जब वो फाइनलाइज हो जाएगा तो उनकी रॉ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उसमें, एंड ऑटोमेटिकली जो बच्चे अच्छे हैं उनको स्कीम से स्पोर्ट्स अथॉरिटी का तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, उनको स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन मिलेगा और साई सेंटर्स में भी वो खेल सकते हैं। तो ये चीजें अभी प्लान है। उसमें पिछले साल जो 8,000 सीबीएसई स्कूल 11,000 स्कूल में से ये असेसमेंट हुआ है। So we want these numbers to go up. I want all the schools to be participating wholeheartedly ताकि कोई भी बच्चा नहीं छूटना नहीं चाहिए। ये है लास्ट ईयर के नंबर्स। हमारा जो है मैंने आपको दिखा था 11,000 स्कूल्स थे, 22,000 में से पार्टिसिपेट किए हुए। और ये सीबीएसई के कुछ डेटाज हैं जो नीचे लगा हुआ है, बट 80,000 से ऊपर हमारा पी टीचर्स अभी सिस्टम में आ गए हैं। 35 लाख के करीब स्टूडेंट डेटा अपलोडेड है, 22 लाख से ऊपर असेसमेंट हो चुका है। ये मोटा मोटा जस्ट टू समराइज प्रिंसिपल्स के इंटरफेस में आपको 5 पॉइंट्स है। स्कूल्स को साइन अप करना है, उनको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, और जब वो आईडी मिल जाएगा तो वो प्रिंसिपल का है। फिजिकल एजुकेशन टीचर को अगर स्कूल में 5 टीचर्स है, पी टीचर हो, स्पोर्ट्स कोच है या पीआरटी हो या जो भी हो, जो असेसमेंट करेंगे वो डाउनलोड करना है ऐप, उसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते प्रिंसिपल के पास जाएंगे, प्रिंसिपल उनको एक्टिवेट कर देंगे बाय गोइंग टू मैनेजर असेसर। स्टूडेंट का डेटा को प्रिंसिपल अपलोड कर लेंगे। जब अपलोड कर देते हैं, यहाँ तक हम कोविड-19 के टाइम में कर सकते हैं। स्टेप 1, 2, 3 और 4 ये आराम से अभी हमें अगले 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में हमें ये चीजों को कंप्लीट करना है। इमीडिएटली इस हफ्ते में, जो अगले हफ्ते में आप ये सब चीजें कर लीजिए, स्कूल को रजिस्टर कीजिए, जितना टीचर से वो डाउनलोड कर लें, और बच्चों का डेटा आप प्रिंसिपल को बोल के अपलोड कराइए। जब ये कर देंगे आप और वो एडिट कर लेंगे, आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। जब आप डाउनलोड हो जाएगा, कुछ बच्चों को घर पे बैठकर ट्राई कीजिए असेसमेंट करने के लिए, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए मोबाइल एप्लीकेशन के बाद। जब भी स्कूल खोलेगा तब एक्चुअल असेसमेंट करेंगे तो ये डेटा रिप्लेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेटा रिप्लेस हो जाएगा। फिर स्टूडेंट का डेटा जब कोविड-19 के बाद खुलेगा, नवंबर दिसंबर में उनकी स्टूडेंट का असेसमेंट करेंगे और उनका सारे रिपोर्ट कार्ड आप दे दीजिए। और अभी आप पेरेंट्स को बोलिए कि वो डाउनलोड करें इस ऐप को, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं उसमें, और रजिस्टर करें और उसके थ्रू वो देख पाए। ये जो है स्कूल्स में, किसी भी स्कूल में अगर स्ट्रक्चर्ड 60 मिनट्स प्ले करना है, फिटनेस को इम्प्रूव कैसे करना है थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्ले, एक्टिव असेंबली, स्ट्रक्चर्ड पी प्रोग्राम, रिसेस को कीजिए, सेंसरी पाथ्स बनाए जिसमें हर स्कूल का हर एरिया को यूज कीजिए, आफ्टर स्कूल प्रोग्राम यूज कीजिए, बच्चों को अलग अलग तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए, फन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी, टीम स्पोर्ट्स, इंडिविजुअल स्पोर्ट, इंडिजिनियस स्पोर्ट्स, फ्री प्ले, ये सबको इन्वॉल्व कीजिए। ये फिट इंडिया के वेबसाइट में एक्टिविटीज दे रखा है, उसको बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 40 के करीब वीडियोस अवेलेबल है। आप सारे को डाउनलोड कीजिए, या तो यूट्यूब में जाके आप देख सकते हैं, फिट इंडिया OFF करके आपको फिटनेस के सेशंस की वीडियोस है, फैमिली फिटनेस के सेशंस है, बहुत सारे सेशंस है, आपको फ्री में ये सारे अवेलेबल है गवर्नमेंट की वेबसाइट में, आप यूज कीजिए। सिमिलरली आपको फिट इंडिया का एक्टिव ब्रेक्स है, 5 वीडियोस है। आप किसी भी स्कूल में कभी भी आपको ब्रेक देना है बिटवीन क्लासरूम, आप इसको चलाइए, इस वीडियोस को चलाइए, इट विल बी वेरी यूजफुल, जिसमें प्राणायाम, पोस्चर्स सारे हैं, आप इन सबको यूज कर सकते हैं। फिट इंडिया की वेबसाइट में आप इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए। सिमिलरली हमारे वेबसाइट में भी देखेंगे, फिटनेस वेबसाइट मूव एट होम करके, जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज है हर क्लास ग्रुप के लिए, नर्सरी टू केजी, 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 12 के लिए कोविड-19 की एक्टिविटीज है। आप सबको डाउनलोड कीजिए, सबको शेयर कीजिए। ये है जो स्कूल में बच्चों को बड़ा पसंद आता है, छोटे बच्चों को एनिमल वॉक्स बड़ा पसंद आता है। आस्क देम टू गिव एक्टिविटीज, जो ये सब है, बच्चों को बोलिए कि वो अपना एक्टिविटीज खुद बनाएं, वो खूब एक्टिविटीज बना सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे fitnessreceiver.me/activities, 400 के करीब एक्टिविटीज है। आप फील फ्री टू यूज सम ऑफ दिस एक्टिविटीज। और ये इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज आप दे सकते हैं प्राइमरी के बच्चों को।
30 मिनट्स के लिए क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। संडे टू सैटरडे मंथली कैलेंडर बना के आप उनको एक्टिविटीज दे सकते हैं। एडिशन की एक्टिविटीज है जिसमें मैथमेटिक्स भी सीख रहे हो, साथ में फिजिकल फिटनेस भी हो रहा है उनका। एडिशन का कुछ एग्जांपल्स है, सब्ट्रैक्शन का है जिसमें वो अलग अलग तरह का एक्टिविटीज है, मल्टीप्लिकेशन की एक्टिविटीज है, डिवीजन की एक्टिविटीज है। सिमिलरली आप योगा की अलग अलग आप फ्लोज बनाइए, 4-4, 5-5 पोज का फ्लोज बना के उनको दीजिए। 6 to 8 के लिए कोई भी एक्टिविटीज का मिक्स आप दे सकते हैं उनको। जब स्कूल खुल जाएगा आप ये सब चीजें कराइए। 60 minutes ऑफ मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज और बोन स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज 3-3 दिन होनी चाहिए हफ्ते में, और एरोबिक एक्टिविटी 60 minutes होनी चाहिए मॉडरेट टू विगरस। ये कुछ एग्जांपल एक्टिविटीज है क्लास 6 to 12 के लिए। एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। 15 minutes का योगा कैप्सूल बनाया 6 to 12 के लिए, फिट इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आप ये 15 minutes का सिंपल एक्टिविटीज है, आप ये बच्चों को कभी भी करा सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं। क्लासरूम के अंदर एक्टिविटीज है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बहुत एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे मिरर करके गेम है, जिससे पार्टनर एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा मिरर है, जो भी ऑब्जेक्ट करता है मिरर उसको रिफ्लेक्ट करेगा। फिजिकल एक्टिविटी, सीटेड ऑन चेयर, एरोबिक्स है, बहुत सारे एक्टिविटीज है जो आप क्लासरूम के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कर सकते हैं। सिंगल स्टैंडिंग पोज में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ये स्कूल की एरियाज को कन्वर्ट कीजिए टू लर्निंग स्पेसेस। कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फिजिकल एक्टिविटीज आप इसके बाद कर सकते हैं। आपको बहुत सारे एक्टिविटीज हैं। और टू एंड इट, आई जस्ट वांट टू प्ले दिस लिटिल वीडियो। तो आज ले रहे जो संकल्प, ये संकल्प निभाना है। छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव लाना है। एक एक कर इस मुहिम में सबका साथ पाना है। खुद को स्वस्थ और इंडिया को फिट बनाना है। कर तो रहे हैं फैसला, हो रही फिटनेस की बात, पर किससे होगी शुरुआत? मुझसे 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 होगी शुरुआत, मुझसे होगी शुरुआत। तो हम भी हैं तैयार, अब बनी ना बात, मुझसे हो रही शुरुआत। अब मिला है मुझे मेरे दोस्तों का साथ। माँ को योग करने की आदत मैं लगवाऊंगा, हर रोग से इनको छुटकारा मैं दिलवाऊंगा। दादी जी को छुपके चीनी अब नहीं खिलाऊंगी, रोज सुबह उनको लेकर सैर करने जाऊंगी। पापा को मैं उनका बचपन याद दिलाऊंगा, उन्हें भी अपने साथ साइकिल चलवाऊंगा। भैया को स्वच्छता की कीमत मैं बताऊंगी, साफ सफाई से अपनों का स्वास्थ्य लाभ करवाऊंगी। अब बदले हालात, मुझसे हो रही शुरुआत, व्यायाम से देंगे हर रोग को मात। अब मिला है सबका साथ, मुझसे हो रही शुरुआत, दे रहे न्यू इंडिया को फिटनेस की सौगात। Yeah, so thank you so much. I just want to just show you that this is a website, schoolfitness.kheloindia.gov.in. आप इसमें देख सकते हैं, जिसको भी कभी कुछ ये हो, आप ये इसमें जाइए। इसके अंदर सारी चीजें, पेरेंट का अगर भूल जाते हैं आपकी पेरेंट ऐप कौन सा है, पेरेंट असेसर ऐप है, सब कुछ है इधर। एंड यू कैन एक्चुअली सी कि इसकी सारे एडमिन मैनुअल है इधर, इसके टेस्ट वीडियोस भी है इधर। आप देख सकते हैं कि टेस्ट वीडियोस जितने भी हम बात कर रहे हैं अभी तक, सारे वीडियोस इधर है। आप इसके डेमो वीडियोस है, हम जिस चीज की बात कर रहे थे, स्कूल को कैसे रजिस्टर करना है, डाउनलोड कैसे करना है, रजिस्टर कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, प्रमोट, एवरीथिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट, एवरीथिंग इज हियर। कोई एक चीज नहीं है जो हमने छोड़ा हुआ है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, और सिमिलरली हमारा कॉन्टैक्ट अस का नंबर है। आप इसमें जाके देख सकते हैं कि आपकी एरिया में जो भी रीजनल मैनेजर है, सब आपको हेल्प करेंगे। कॉन्टैक्ट अस नंबर है, सारे लोगों का फोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, सब कुछ है। आप किसी को व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिए, किसी को ईमेल से कनेक्ट कीजिए,
इसमें कॉन्टैक्ट सपोर्ट का भी कॉन्टैक्ट है, सब कुछ है। खेलो इंडिया फर्स्ट आप इसमें सारे जाके देख सकते हैं आप सपोर्ट के लिए। सो प्लीज आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको यूज कीजिए दिस प्लेटफॉर्म को, और आप अपने अपने स्कूलों में को कीजिएगा। With this thing, I want to end this session. So I think it's yeah, Sudhi sir. Sir, can we take up a couple of questions? Yes, sir. Sir, one common question that we get is, sir, is there any option to print out the report? To print? Yeah, absolutely. Print out the report. Yeah. जो नीरज उन्होंने बताया, एक्चुअली ऑप्शन तो बहुत सिंपल है। आप जैसे उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल के लिए 3 चीज कर सकते हैं। प्रिंसिपल एक स्टूडेंट वाला है, एक असेसर वाला, तीसरा रिपोर्ट है। 3 चीजें। स्टूडेंट में स्टूडेंट का डेटा अपलोड कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। मैं आपको सब समराइज करके इसीलिए बता रहा हूँ। तीन सिंपल लिंक्स है। पहला वाला है स्टूडेंट, सेकंड है असेसर, तीसरा है रिपोर्ट। 3 है। स्टूडेंट में जाके वो स्टूडेंट को डेटा को अपलोड कर सकते हैं, बच्चों को प्रमोट करना कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। असेसर में जाके स्कूल में जो नए लोग ज्वाइन करते हैं आप उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, जो छोड़ के चले गए आप उनको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तीसरा आ गया रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर आप स्कूल का रिपोर्ट देख सकते हैं, क्लास वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं, सेक्शन वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं, बच्चे के लेवल पे रिपोर्ट देख सकते हैं। आप किसी भी क्लास और सेक्शन को चूज कीजिए, सारे के सारे बच्चों का रिपोर्ट का जब आप कहेंगे डाउनलोड रिपोर्ट, पूरे सेक्शन का रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों के रोल नंबर वाइज सॉर्टिंग होकर डाउनलोड हो जाएगा, सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज इजी। एंड एट द बॉटम ऑफ द रिपोर्ट कार्ड इट सेज डाउनलोड खेलो इंडिया ऐप। तो आप वो पेरेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन हो गया। एज अ क्लास टीचर यू कैन डाउनलोड ऑल द रिपोर्ट कार्ड्स। Sir, one question is that from Tulasi Ram, that how many teachers can log in at a time? वो कुछ नहीं, आप स्कूल में अगर 200 टीचर है तो 200 टीचर लॉग इन कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन से दोनों रतीश जी है, सूर्य प्रकाश जी है, उन्होंने बड़ा अलग तरीके से किया। उन्होंने क्या किया कि पहले हमने नेशनल लेवल ट्रेनिंग कराया, रीजनल लेवल ट्रेनिंग कराया, फिर हमने केंद्र विद्यालय लेवल ट्रेनिंग कराया। विद्यालय लेवल ट्रेनिंग में उन्होंने जो भी ट्रेनिंग के लिए आए थे उन्होंने स्कूल के सारे टीचर्स को ट्रेन किया। एवरी सिंगल टीचर वाज ट्रेन्ड on 2-3 things. They were trained on how to do assessment. They were also trained on how to conduct the PTM. स्पोर्ट्स का PTM अगर करना है, फिटनेस का PTM करना है, वो हर टीचर को पता है कि लेवल 1 to level 7 का मतलब क्या है, BMI कैसे करते हैं। तो इन केंद्रीय विद्यालय एवरी सिंगल टीचर इज ट्रेन्ड ऑन हाउ टू डू फिटनेस असेसमेंट। तो आप अपने स्कूल में टेक्निकली एवरी सिंगल टीचर इन द स्कूल कैन एक्चुअली डू फिटनेस असेसमेंट, और वो ये कर सकते हैं। Sir, one question is that, sir, is it possible to upload every student's data together, or else is there anything like class 1, class 2, class 3 like that? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली आप ये देखिए, अभी कोविड-19 का सिनेरियो ले लेते हैं हम। कोविड-19 के टाइम पे मान लीजिए कि हमारे स्कूल में 1000 बच्चों का डेटा अभी है हमारे पास। 1000 बच्चों का डेटा अक्रॉस ऑल क्लासेस। आप 1000 बच्चों को एक बार अपलोड कर लीजिए। जो कोविड-19 के बाद जब स्कूल खुलेगा, सो लेट अस से देयर आर 100 न्यू एडमिशंस, तब वो 100 न्यू एडमिशन को अपलोड कर लीजिए। आप ये सोचिए कि 50 बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो 50 बच्चों को आप ट्रांसफर कर लीजिए, और क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं, आप उनको ट्रांसफर कर लीजिए। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू कैन डू इट ऑल एट वंस, यू कैन डू इट इन पार्ट्स। सो मान लीजिए देयर आर 2 चिल्ड्रन हु जॉइन द स्कूल, आप 2 ही बच्चों को अपलोड कीजिए। सो यू कैन डू इट, द फाइल नेम इज द सेम, वही एक्सेल शीट को डाउनलोड कीजिए। अगर 4 बच्चे ज्वाइन किए, so you fill the data of those 4 children and you upload it back. Sir, one more question is there. Sir, what is the time gap for each test? Is there any particular time gap between 2 tests? Ratish, you want to answer? I would like to answer for that. You should give a time gap so that the child can recoup his energy back. There should be a time gap till that once the test is over, the child is get fatigues या थक जाता है। उसके बाद आप टाइम दीजिएगा, करीब 1 आधा घंटा तो मिनिमम दीजिए, ताकि वो बच्चा अपना एनर्जी रिकूप करे और नेक्स्ट अगले टेस्ट के लिए तैयार रहे। डिपेंड करता है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, BMI में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे टेस्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं उसमें। बट जो टेस्ट में जिसमें आप थक जाते हैं, 600 मीटर हो गया, 500 मीटर हो गया, पुशअप्स हो गया, तो यू प्रॉब्ली नीड, सो यू जस्ट नीड टू प्लान इट अकॉर्डिंगली। इनफैक्ट इफ यू पुट देम इन अ सर्किट, दे आल्सो गेट टाइम टू रिकूप। सो 5 डिफरेंट स्टेशंस में लगा के एक बार कर सकते 2-3 आवर्स में। या 5 अलग-अलग स्टेशंस पे लगाइए, सो दैट व्हेन दे आर स्टैंडिंग इन लाइन, सो ऑटोमेटिकली वो रिकूप भी हो जाएंगे उसमें। Sir, these are the common queries. Can we finish, sir?
Yes, sir. It was really wonderful and educative and informative session on behalf of all the participants and Sports Authority of India, Lakshmi Bai National College of Physical Education, Khelo India, and Ministry of Youth Affairs and Sports. I would like to thank Mr. Sujit Panigrahi, CEO Fitness 365, and also the co-coordinator for this program for having a wonderful session. Thank you very much, sir. And I would like also to thank Mrs. Neeraj Singh, who is the HOD of JP Public School, Noida, for Madam C, your valuable presentation. I would like to also thank Sri Ratish sir, who is from Kendriya Vidyalaya Sangathan, for your wonderful session. We thank you. I also thank the full session. I would like to also thank all the participants for your active participation. Once again, hope that we will be meeting tomorrow again to discuss in detail this session. Once again, thank you all. Thank you very much. Have a nice day. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.